تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار علی امین خان گنڈاپور اپنے صوبائی کابینہ کے ہمراہ اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں۔ امید ہے سر علی امین خان گنڈاپور صاحب کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں، اور ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ آج خان صاحب سے اجازت دینی ہے نا، وہ تو لے کے بھی نہیں گا، یہ حکومت تو پاس ہے بیچاری پنجاب والی اور کیس بریڈی کے پاس ہے، لیکن یہ ہے کہ السلام علیکم، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب سے ایک فین جو ہے ان کا ملنے کے لیے آیا ہے، اور یہاں پہ کچھ کھانے کے لیے بھی لایا گیا ہے۔ اس ٹائم اڈیالہ جیل کے بالکل باہر کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ علی امین خان گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اپنے فین یہاں پہ اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر کے مناظر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ علی امین خان گنڈاپور صاحب نے اپنے فین کو جو ہے وہ کھجور تحفے میں دی، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ کھجور جو ہیں وہ سب سے اچھی کھجور ہیں، اور یہ فین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ابھی بھی کھجوریں کھا رہا ہے اور مسکرا رہا ہے۔ تو یقینی طور پہ آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہاوت ہے کہ علی امین خان گنڈاپور دل کے بہت سخی ہیں، اور یہ خان صاحب نے بھی برملا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ علی امین جو ہیں وہ یہاں پہ آج پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ جس طرح وہ سخاوت کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، تو انہوں نے اپنے ایک مداح کو جو ہے وہ نقدی بھی دی یہاں پہ، اور وہ کافی خوش ہیں یہاں پہ۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گنڈاپور صاحب سیلاب متاثرین کے لیے جو وفاقی حکومت نے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہو آپ؟ جیلم سے۔ کیسے لگا آپ کو وزیر اعلیٰ صاحب سے مل کر؟ بہت اچھا لگا جی۔ لیکن ہمارا جو سیلاب تھا ڈفرینٹ تھا، کیونکہ ہمارے وہ جو اوپر سے دودھے آئے تھے نا، مٹی کے اور پتھر آئے تھے، ہماری بہت سی جو میتیں ہیں وہ ان کے اندر جو ہے نا نیچے دس گئی تھی، پورے آبادی اور گاؤں، ان کو نکالنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج تھا، وہ ہم نے انشاءاللہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد کمپنسیشن جو تھی لوگوں کی وہ بھی ہم نے مکمل کر لی۔ اب ہمارا کام چل رہا ہے ریہیبلیٹیشن کا، اس پہ ہمارا کام شروع ہے انشاءاللہ، وہ بھی ہو رہا ہے۔ باقی وفاقی حکومت کا فرض ہے کہ وہ کرے اپنا کام، لیکن ہمارے ساتھ وفاقی حکومت نے اس سیلاب کے اندر کوئی ایسا خاطر خواہ کام نہیں کیا۔ وزیر اعظم صاحب خود گئے تھے وہاں پر، وہ بھی انہوں نے میرے خیال میں ہماری ٹوٹل ڈیتھ جو ہے وہ تقریباً 400 پلس ہو چکی ہے اب، تو انہوں نے وہ 42 بندوں کو چیک دیے وہاں پر، باقیوں کو بھی چیک بھی نہیں بھیجے ابھی تک۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کوئی ایسی کوئی چیز اگر دی ہے تو پنجاب نے بھی آپ سے رابطہ کیا، ایک دو کوئی ان کے اپنے وہاں پہ گھوم رہے ہیں، کوئی اکدو کا جو فارم 47 والے ایمنیشن میں ہیں، ایک بات تو پوری کرنے دیا کرو نا یار، امپورٹنٹ بات پوچھی ہے اس سے پورا جواب دے رہے ہو نا۔ اس میں جو ہے انہی کے ذریعے کوئی سامان دیا ہو جو انہوں نے چھپا ہی لیا ہوا ہے، چوری کر لیا ہوا ہے، تو یہ سارے چور، تو مجھے نہیں پتا۔ بہرحال ہمیں سرکاری لیول کے اوپر، میں اس پہ سیاست کرتا نہیں ہوں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، شکر ہے الحمدللہ ہم خود کر رہے ہیں، لیکن ایز اے فیڈرل گورنمنٹ ذمہ داری کے طور پر جو کرنا چاہیے تھا سرکاری طور پر ان کو، فیڈرل گورنمنٹ کو، وہ ہمارے ساتھ انہوں نے نہیں کیا۔ اچھا خان صاحب کا سوال یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ شہداء کے جنازے پر نہیں گئے، آپ بڑی تنقید ہو رہی ہے، تو کیا جو ہے وہ صوبائی حکومت کی پالیسی جو ہے وہ مختلف ہے وفاقی اور ریاستی پالیسی سے، اور اس میں جو ہے وہ آپ نہ صرف آپ کا، نہ ہی کوئی آپ کا کوئی اور نمائندہ گیا، جبکہ فیلڈ مارشل بھی وہاں پہ تھے، پرائم منسٹر بھی وہاں پہ تھے، تو آپ کیا اس حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں گئے؟ بات یہ ہے کہ باقی تو ہم نے ہر طرح کی چیزیں سیاست کر لی ہے، ایک یہ جنازے رہ گئے تھے، اب ہم نے جنازوں میں بھی سیاست شروع کر دی ہے۔ تو میں اب یہ کہوں، اس سے پہلے جو پچھلا ہمارا واقعہ ہوا تھا اور ان کے جنازے ہوئے تھے، اس میں گیا تھا تو یہ نہیں گئے تھے، پھر یہ اچھی بات ہوگی۔ دیکھو بات یہ ہے، پالیسی کے تحت اپنی پالیسی ٹھیک کر کے عملی اقدامات کر کے مسئلے کا حل اصل چیز ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ ہو کیوں رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کا بچہ، کسی کا بھی بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا شوہر، کسی کا بھی اس طرح کا نقصان کسی بھی طرح کسی کا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جو پالیسی پہ ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا اب تک۔ جیسے میں وزیر اعلیٰ بنا پہلے میں نے پورے کے پورے قبائل کے سب کے جرگے بلائے اور بار بار بلائے، انہوں نے مشاورت کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس میں مشترکہ طور پہ ہم نے ایک ٹیوارز بنائے کہ یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے۔
اس کے لیے ہم نے ان کو جب میں نے کہا کہ افغانستان سے مذاکرات ہونے چاہیے تو انہوں نے میرے اوپر مطلب ڈرامہ شروع کر دیا کہ جی یہ تو کر ہی نہیں سکتا. تو یار تم کر لو یار, کیونکہ ایک صوبہ ہے اور صوبے کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے اس چیز کی کہ وہ یہ مذاکرات بین الاقوامی مذاکرات کر سکے. پھر بڑا لڑ جھگڑ کے بار بار کہے کہ آخر میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آمادگی کی کہ ہم آپ ہمیں ساتھ ہم بھی ہوں گے. تو میں نے کہا میں تو پہلے جیسے کہہ رہا ہوں کہ آپ ساتھ ہوں, آپ کے لوگ بھی ساتھ ہوں. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیونکہ ہمارے ایک بارڈر ہے, ہمارے اپنی ایک زبان ہے, ایک کلچر ہے, روایات ہیں, ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں, سیم اقوام ہیں وہاں پر. تو اس لحاظ سے ہم نے کہا کہ ہم ایک بہت بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ ہوں. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹی او آر بھیجے, ٹی او آر بھیج کے 7-8 مہینے ہو گئے, کوئی جواب نہیں آیا. تو اب یہ جواب سوال کر رہے ہیں یا آپ کو اس طرح سوال بتائے جاتے ہیں یا کوئی کرتا ہے سوال یا میڈیا پہ, پھر وہی بات ہے نا. پھر بات یہی ہے یار, یا تو پھر ایک بندے کو سوال نہ کرنے دیا کرو یا پھر جواب سننے کی سکت رکھو, پورا جواب سن لیا کرو نا. یہی چل رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی, آدھی باتیں ہیں, ہر چیز آدھی چلتی ہے, پورا بیانیہ چلتا نہیں ہے. اس سے جو ہے نا کنفیوژن پیدا ہوتی ہے اور یہی وہ کر رہے ہیں بیسیکلی, اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہو. اس کے اندر ایسا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اب اس وقت کے جو حالات بنے ہوئے ہیں, یہ حالات بنائے کس نے ہیں؟ 2018 سے لے کے عمران خان کی حکومت جب تک انہوں نے سازش ہدایت نہیں گرائی تھی تب تک امن کیوں ہو گیا تھا؟ بیکاز آف دا پالیسیز. ہماری افغانستان کے حوالے سے ہماری پالیسیز اچھی ہوں گی تو ہم ایکسپیکٹ کریں گے اچھائی. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پرائی جنگ میں اپنے ہوائی اڈے دوں اور ادھر سے جہاز اڑا کے لوگوں کے بچے مرواؤں اور پھر یہ امید کروں کہ میرے پہ پھول پھینکیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو پراپر بیٹھ کے کوئی بات کرنی پڑے گی. اس کے اوپر یہ نہیں آ رہے کیونکہ ان کو پرواہ نہیں ہے. پھر میں یہ کہوں گا پرواہ نہیں ہے نا. پھر اس کے بعد انہوں نے جو حرکت کی ہے, جو آپ نے سوال کیا کہ جی اور چھوڑ دو, وہ چلانا شروع کر دیا, وہ جی وہ نہیں آیا جنازے پہ, وہ جی جنازے پہ وہ بیان دے رہے ہیں منسٹر ان کے. یہ جنازے ہو کسی وجہ سے, اس کو سزا ہونی چاہیے. یہ کیا طریقہ ہے کہ میں غلطی کروں, میری وجہ سے لوگوں کی اموات ہوں, لوگ شہید ہوں, اور پھر میں جنازہ پڑھ کے بس کہہ دوں کہ جی بس میرا کام ہو گیا. میرا کام یہ نہیں ہے. میرا کام اس مسئلے کو حل کرنا ہے جس کی وجہ سے شہادتیں ہو رہی ہیں. اس کے اوپر کیا اقدامات کیے, اس پہ آ جاؤ, مناظرہ کر لو ہمارے ساتھ. ہماری بات آپ مان نہیں رہے, ہمارے کولیٹرل ڈیمیج ہوئے, اچھا ہمارے جو آپریشن کیے گئے اس سے کیا رزلٹ نکلا؟ ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے وعدے کیے ہوئے آپریشن کے بعد لوگوں کو ابھی تک کمپنسیشن نہیں ملی. پھر کہتے ہیں عوام کا اعتماد. عوام کا اعتماد کیسے بحال ہوگا؟ آپ نے عوام کو دھوکہ دیا ہے, عوام کو دھوکہ دیتے ہیں, وہ دھوکے کی وجہ سے عوام کا آپ اعتماد نہیں ہے. تو جب تک اعتماد نہیں ہوگا آپ کیسے کوئی جنگ جیت سکتے ہو بغیر اعتماد کے؟ تو یہ وہ سارے پہلو ہیں کہ جن کے اوپر جس کی بھی غلطی ہے, جس کی بھی غلط پالیسی, ہم یہ بھی چلو نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں کسی کی نیت پہ شک نہ کرو. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یار کسی کے بچے جو ہے نا وہ شہید ہو یا کسی کے بچے جو ہے نا وہ ان کی میتیں ہوں. ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے, لیکن پالیسیز کو ریوائز تو کرو, ان کے اوپر سوچ بچار تو کرو, ان اقدامات کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی بہتر اقدامات تو کرو. لیکن اگر آپ وہ بھی نہیں کر رہے اس کا مطلب آپ کو پرواہ نہیں آ رہی. اور یہاں پہ یہی ہو رہا ہے, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز کی, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور ان پہ بے شرمی کی بات یہ ہے کہ اب سارا کچھ کرنے کے بعد اب جنازوں پر بھی سیاست شروع ہو گئی ہے. جس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ان کے کیا مورل ویلیوز ہیں, یہ ان کے اخلاقی اقدار کیا ہیں. اب یہ دیکھو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ملنے کیوں نہیں دے رہے. اب میں آپ کو بتاؤں نا ملنے کیوں نہیں دے رہے. یہ دیکھیں, ان کا ایک مقصد ہے کہ پارٹی تقسیم ہو, ان کا ایک مقصد ہے پارٹی میں آپس میں ٹکراؤ آئے, ان کا ایک مقصد ہے کنفیوژن پیدا ہو. وہ ایک بڑی مشہور بات ہے, پہلے کہتے تھے زمانے میں if you can't beat them, join them. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یہ چیز چینج ہوتی گئی. اب یہ ہے کہ if you can't beat them, confuse them. لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے. اب یہ اس کے اوپر کیوں عمل پیرا ہے؟ اچھا میری ملاقاتیں کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ ابھی آپ سوچیں نا, اسٹیبلشمنٹ کو میری ملاقات نہ چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کی یہ پلاننگ ہے, ان کے چھوڑے ہوئے ایجنٹس ہیں, ان کا دیا ہوا ایک ایجنڈا ہے. شروع کہاں سے ہوا؟ مائننگ بل سے. مائنر منرل بل آیا, اس کے اوپر ایک بیانیہ بن گیا, شروع ہو گئے. اور پھر یہ تو مسئلہ یہ ہے نا کہ بھائی میں ایک بات کر لوں نا, کل کو غلط ثابت ہو جائے. تو یہ شرم حیا تو یہاں پہ ہے نہیں, نہ یہ ظرف ہے کسی میں, اور نہ ہی کوئی قانون ہے. اگلا پھر اس کی معافی بھی مانگے نا کہ میں نے غلط بات کی ہے. پھر ثابت نہیں کر سکتا غلط بات کو, پھر معافی تو مانگے. تہمت لگانا کتنا بڑا جرم ہے اسلام میں. ہم مسلمان ہیں, پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ہمارا آئین اسلام کے مطابق بنا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ تہمت لگانا اتنا بڑا جرم ہے, لیکن اس تہمت کے اوپر یہاں پہ کوئی سزا ہی نہیں ہے. اب اس پہ کنفیوژن بنی, غلط بیانیے چلائے کچھ ان کے ایجنڈے والے لوگ,
कुछ नादान लोग चलो शुरू हो गए, फिर उसके बाद दोबारा एक डेढ़ महीना ये चलता रहा, उसके बाद दोबारा एक और स्टेप आ गया, स्टेप टू क्या था कि हमारा बजट पेश होना था, जो हम बनाना शुरू करते हैं 3 महीने पहले बजट से। उसके ऊपर इन्होंने खान साहब ने कहा मुझसे मुलाकात, खान साहब का हक बनता है, खान साहब की गवर्नमेंट है, उनकी पार्टी है, उनकी हुकूमत है, वो लीडर है। उसके ऊपर इन्होंने मिलने नहीं दिया। उसके ऊपर फिर बयानी है, कोई क्या खानी चाह रहा है, कोई क्या खानी चाह रहा है, जो अंदर से आता है बाहर आता है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, किसी की नीयत में शक नहीं करता, लेकिन इनका ये एजेंडा है, इनकी नीयत मुझे क्लियर है, एस्टेब्लिशमेंट और इदारों की नीयत मुझे क्लियर है। हुकूमत की तो मैं बात ही नहीं करता ना, हुकूमत तो है ही नहीं। आप क्या समझते हो ये हुकूमत शहबाज शरीफ की है या मरियम की है? हुकूमत तो इनकी है ही नहीं। अब उसके बाद आ गया जी बजट पास करने के लिए, फिर वो 1 महीना 1.5 महीना वो सारे एमपी गद्दार हैं। मैंने बड़ी सिंपल सी एक बात की थी कि बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी भी वक्त चेंज हो सकता है। इमरान खान ने कभी भी ये नहीं कहा कि यार हुकूमत गिरती है तो गिर जाए, बजट पास नहीं करना, मुझे उन्होंने नहीं कहा। मैं बजट अगर पास ना करूं उससे क्या होगा, उससे टेक्निकली हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं खान साहब को अगर मिलूं या खान साहब कहें कि ये तुमने क्या किया है, तो फिर मैं क्या कहता कि फिलाने व्लॉगर ने कहा था, फिलाने फेसबुक वाले ने ट्वीट की थी या ट्विटर पे ट्रेंड चला था। अच्छा, खान साहब का हुक्म आए, मैंने कह दिया असेंबली के फ्लोर बजट से पहले कह दिया खान साहब की हुकूमत है, खान साहब कल कहें अभी कहें हुकूमत उनकी, हम वैसे हुकूमत खत्म कर सकते हैं, पावर हमारे हाथ में, खान साहब की दी हुई पावर है। मैं खान साहब की पावर खान साहब से कैसे ले लूं, उनके हाथ में है, अभी भी है। उस पर ड्रामा बनाया, वो जी गद्दार है गद्दार है। अच्छा, उसके बाद फिर सेनेट इलेक्शन आ गया, सेनेट इलेक्शन में फिर वही ड्रामा, वो ये खान साहब के नाम नहीं है, फिलाने के नाम है, वो फिलाना नाम दे रहा है, फिलाना नाम दे रहा है, वो उधर चल रहा है, वो उधर चल रहा है, पार्टी के लोग आपस में लगे हुए हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट, मेरा नाम दिया है, मेरा नाम दिया है, फिलाने का नाम दिया है, 4 बंदे उसके साथ, 8 बंदे उसके साथ, वही तकसीम वाला एजेंडा। जो लोग काम कर रहे हैं और साथ कोई नादान भी। क्या हुआ, खान साहब ने क्या कहा कि मेरे यही नाम है, ऐसा ही है ना, किसी ने माफी मांगी? फिर कहो कि बेशर्मो माफी तो मांग लो, फिर कहते हैं कि ये कह रहे हैं बेशर्मो माफी तो मांग लो, तो क्या कहूं। और उसके बाद आगे चले, सेनेट के बाद बाजोड़। अब बाजोड़ के ऊपर अब सबको पता होना चाहिए, इनकी वजह से हालात खराब हुए हैं। बाजोड़ में टारगेट किलिंग आपके सामने है, कब से शुरू हुई? इलेक्शन से, रिहान ज़ेब से शुरू हुआ काम। उसके बाद आपके जेवाई के 32 तकरीबन बंदे जेवाई के, वो धमाका हुआ उनके प्रोग्राम में, उनका अमीर, फिर एक हमारे एक्स सेनेटर साहब, फिर मौलाना खानजेब साहब, इसके अलावा बाकी बहुत पॉलिटिकल जिनको आप लोग नहीं जानते, क्योंकि हमारा खून तो लाल है नहीं ना पख्तूनख्वा के लोगों का, आपको पता ही नहीं है उनका, क्योंकि आप चलाते ही नहीं है उसको। इस तरह के कितने लोग हुए। उसके बाद मेरा एसी, मेरा तहसीलदार, मेरे पुलिस के सिपाही, फौज के तकरीबन इस रोड के ऊपर तकरीबन 52 लोग शहीद हुए। अच्छा, ये रोड कौन सा रोड है जिस रोड पे अटैक हो रहा था? ये रोड वो रोड है कि जिससे आपके आगे बॉर्डर की चेक पोस्टें हैं। एक मेन रोड जाता है, बॉर्डर है, बहुत लंबी 2200 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके ऊपर फिर उस एक रोड से उन चेक पोस्टों से और चेक पोस्टों को फीडिंग होती है, फासले पे होती है। अगर वो रोड ही खत्म हो जाए, वो जो महाज पे वो फौजी जो वाकई वो फौजी है कि जो मुल्क और हमारे बच्चों के लिए हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, वहां पे वो फौजी है। एक फौजी है ISI वाला, एक फौजी है MI वाला, वो कुछ और कर रहा है, एक फौजी है बॉर्डर वाला, वो फौजी है यूनिट वाला। वो ड्यूटी पे जाके इस वक्त भी, आप मैं बताऊं आपको, आप हैरान होंगे कि उमर अयूब, हमारा जिसको सजा हुई है, हमारा अपोजिशन लीडर उमर अयूब, उसका बेटा इस वक्त नार्थ वजीरिस्तान में पोस्टेड है। नार्थ वजीरिस्तान के अंदर जब उस वक्त ऑपरेशन हुए थे 2012 से पहले वाले, उस वक्त जो लोग डिस्प्लेस हुए थे अभी तक वापस नहीं गए, अभी भी बकाखेल कैंप कायम है, उसके अंदर भी लोग हैं, उन इलाकों के लोग मुख्तलिफ होस्ट फैमिली बन के और लोगों के साथ अभी तक है। कब की बात है? 14-15 साल हो गए, वापस नहीं भेजा गया, हालात ठीक नहीं हो सके। अब उसके बाद वहां पर उस रोड के ऊपर बार बार अटैक हुए। उस अटैक के बाद हमने ना ऑपरेशन की इजाजत दी है, 3 फोरम है ऑपरेशन की इजाजत देने के, एक असेंबली, एक कैबिनेट, दोनों का मुझे कोई नोटिफिकेशन आप दिखा दें। तीसरा, एज चीफ मिनिस्टर मुझे कोई अपना दिखा दो नोटिफिकेशन, मुझे कहते हैं रोको, मुझे बताओ मैंने कौन सा नोटिफिकेशन किया, मैं कैंसिल करता हूँ, या मुझे बता दो मैं क्या लिखूं कि एज चीफ मिनिस्टर के वो नोटिफिकेशन मैं कर दूं जिससे ये ना हो। उसके बाद वहां पे अमन पसून जिस तरह हर जगह पे हुए वहां पे हुआ, उस अमन पसून ने खुद बैठ के अपना जिरगा बनाया। उन जिरगे के लोगों ने अमन पसून वाले साथ मुज़ाकरात करके एक टाइम लाइन दी कि यार ये एरिया हमें क्लियर करने चाहिए क्योंकि टारगेट किलिंग भी हो रही है, लोग मौजूद हैं,
खाना मांगते हैं, खाना खिलाओ तो गलत काम है, दहशतगर्दों को खाना खिला रहे हो, ना खिलाओ तो वो मारते हैं। तो उनके अपने कंसेंसस के ऊपर ये हुआ कि हम ये एरिया खाली करते हैं आर्जी तौर पर और यहाँ से क्लियर करके वापस जाएंगे। उसमें से 8 गांव वापस जा भी चुके हैं, मजीद भी जा रहे हैं। आज मेरे ख्याल में 4-5 गांव जा रहे हैं। एक तरीका चल रहा है और एरिया क्लियर हो रहा है। अब उसको रंग क्या दे दिया, वो जी ऑपरेशन है। अब देखिए कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ, पहले हो रहा था ना, फोर्ट पे हमला होता था, वो जवाब देते थे, आबादी होती थी, हमारे लोग शहीद हो जाते थे, आम लोग जो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब जब से ये उन्होंने आपस में कंसेंसस किया है अवाम ने, उसके बाद कोलेटरल डैमेज एक भी नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ, क्योंकि वो लोगों ने अपनी रजा से वहां से पीछे हटे कि हमें एरिया क्लियर करो ताकि हम दोबारा जाए। अच्छा, उसमें भी एक पूरी तहसील है सलारजई, उसमें कुछ भी नहीं है, सब लोग आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि वहां पे दहशतगर्द नहीं थे, उन्होंने नहीं छोड़ा, उनको एंटर नहीं होने दिया। अब उन हालात में मुझे मिलने नहीं दे रहे, खान साहब को फीडिंग हो रही है जी, ऑपरेशन करा रही है सूबाई हुकूमत, सब झूठ, सफेद झूठ है ही नहीं, साइंस से कोई वास्ता ही नहीं है उसका। अब मुझे ना मिलने देने का फायदा किसको हो रहा है? एस्टेब्लिशमेंट को। ठीक है, जिस एस्टेब्लिशमेंट के बारे में मेरे बारे में कहते हैं मेरे अच्छे ताल्लुकात, अच्छे ताल्लुकात के बाद ये हाल है। अच्छे ताल्लुकात ये हैं कि मेरा पासपोर्ट बंद है, पासपोर्ट मेरा ब्लॉक है। अब मैं ये बात इसलिए नहीं करता ना, क्योंकि मैं आप लोगों को कमजोरी बताना नहीं चाहता कि मैं मतलब गिले करूँ ना, मेरी उम्र है कि मैं गिले करता फिर मुझे ये नहीं हो रहा, वो जी वो नहीं हो रहा, मेरी में आदत है ही नहीं है वाली। मैं मुकाबला करता हूँ, स्टैंड लेता हूँ, चैलेंज को देखता हूँ, वो शुक्र है आपने देखा कि मैंने कहा था कि सलाह में हमें किसी की जरूरत नहीं है, मैंने साबित किया है कि हम खुद कर सकते हैं इंशाअल्लाह। अपने लोगों की खिदमत हमने की है और बेहतरीन तरीके से की है, आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। अब बात यह है कि उसके ऊपर गलत बयानियां शुरू हैं, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। तो इसका फायदा कौन ले रहा है? एस्टेब्लिशमेंट। उसके एजेंडे पे जो काम कर रहे हैं वो अगर आप लोगों को समझ नहीं आते तो फिर मैं कैसे समझाऊँ आपको? उनको जो फॉलो करके काम कर रहे हैं उनको समझ नहीं आती, मैं कैसे समझाऊँ उनको? अब ये लास्ट ईयर भी मैं अपनी फैमिली से उम्र पे जाना चाह रहा था छुट्टियों में, मैंने कहा कि मुझे पासपोर्ट मेरा खोल दे, नहीं किया। इस साल फिर छुट्टियां थी, शुक्र है कि ये इस खान साहब के कहने से पहले मैंने अप्लाई फिर किया हुआ था इस साल कि मेरा पासपोर्ट खोल दे। उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ था ना ऐसा कि मैंने अफगानिस्तान जाना है, कहीं जाना है, वो लेटर आ गया सामने। क्या किसी ने माफी मांगी इस बात पर कि जी मैंने बहाना बनाया है कि मेरा पासपोर्ट नहीं है? बहाना किस बात का है भाई? एक डॉक्यूमेंट है, शिकारा डॉक्यूमेंट है, बहाना तो वो होता है कोई झूठ हो। तो मेरी अर्ज ये है, ये सारा कुछ चल रहा है, ये इनके एजेंडे के मुताबिक पार्टी को तकसीम करने का एजेंडा है और उस पर हमारे कुछ नादान और कुछ उनके एजेंडे के ऊपर छोड़े हुए लोग। मैं बड़ा क्लियर बात करता हूं, मुझे न किसी का खौफ है न किसी का डर है। मुझे आप ये बताएं कि अपनी पार्टी की खवातीन के ऊपर इल्जाम लगाना, इससे घटिया हरकत और हो सकती है? आप बताएं, इससे घटिया हरकत और हो सकती है? वो सनम जावेद जिसने बार बार नजरिए पे खड़े होके वो जेलों में बार बार गई है, हम में से शायद बहुत से लोग इतनी बार ना आगे, वो जितनी बार वो गई है, उसके ऊपर तोहमतें लगाना शुरू कर दी। कितनी शर्म की बात है। और जो लोग हमारे इसको फिर रिएक्ट नहीं करते और इस चीज के खिलाफ खड़े, मैं बता रहा हूं उनको, अपनी पार्टी की मॉरल खराब कर रहे हैं आप लोग। अपनी पार्टी का वो जो इखलाकी इक़्तिदार है उसको आप डैमेज कर रहे हो। आपको स्टैंड लेना चाहिए इस चीज के ऊपर कि किसी की माँ बहन बेटी के ऊपर बात नहीं होगी। इमरान खान ने जिंदगी में आज तक किसी की माँ बहन बेटी पे बात नहीं की। ये क्या कल्चर शुरू हो गया है यहाँ पर? मेरी आपसे नहीं बनती, मैं आप पे तोहमत लगा दूं, आपके अखलाकियात में तोहमत लगा दूं, आपके किरदार में तोहमत लगा दूं, ये कोई तरीका है? और उससे क्या होगा? जब आपके मोरल्स, आपके मयार, आपके इखलाकी इक़्तिदार ऐसे हो जाएंगे तो आपका नजरिया भी कमजोर होगा, आपकी पार्टी भी कमजोर होगी, आपकी तहरीक भी कमजोर होगी, आपकी स्ट्रेंथ भी कमजोर होगी। उस पर लगे हुए हैं। गंडापुर साहब, एक ये बताइएगा कि केपीके इस वक्त सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार है और जो दहशतगर्दी होती है उसमें बड़ी तादाद में जो है वो अफगान मुलविस नजर आते हैं। अफगान महाजरीन को वापसी का फैसला हुआ, केपी गवर्नमेंट उसकी मुखालफत कर रही है, मुज़ाकरात की बात कर रही है। मौजूदा हालात में मुमकिन है जब हमारे पाकिस्तान में पिछले कई दहाइयों से हैं, एक तरफ अफगान महाजरीन की आप बात कर रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं अफगानिस्तान से आए हुए दहशतगर्द। इन दोनों में बड़ा फर्क है, इनमें फर्क करो। मैं ये कहता हूं कि यार इतना अर्सा उन्होंने गुजारा है, उनको वापस इज्जत से भेजो, इज्जत से वो जाएं वापस। उन लोगों को हमारी एक रिवायात है और हम वो पूरी कर रहे हैं, अभी भी हमारा सूबा कर रहा है माशाल्लाह, बड़ी इज्जत से हमने जगह बनाई है उनके लिए, हम पूरी फैसिलिटेट कर रहे हैं, किसी को तंग नहीं कर रहे। ये कह देना कि एग्जाम तुम निकलो तुम्हारे बेटे दिन है, फिर उनके कारोबार है यहाँ पे बड़े बड़े छोटे छोटे कारोबार हैं, कारोबार बंद करने के लिए कोई टाइम लगता है, कोई वादे घाटे होते हैं, वो करने पड़ते हैं। फिर मवेशी बंद कर दिए उनके, क्या मवेशी लेके नहीं जा सकते?
यार मवेशी लेके ना जाए। आज आप खड़े हो जाओ यहाँ पर, अखबार माजरी बेचारा जब कहता है कि मेरा मवेशी मैं बेचता हूँ, उसकी 3 लाख की गाय को 1 लाख में नहीं खरीदता, तो पता है ये मजबूर है। वैसे मुसलमान तो हमारे फिर ये हमारे फिर अमाल है ना, इखलाकियात तो हमारे ही है। फिर मैंने ही लेटर लिखा, यूएनएचसीआर से मीटिंग की, उनकी हेड से लेटर लिखा और मैंने उसके ऊपर उनको इजाजत दिलाई कि अपने माल मवेशी साथ ले जा सकते हैं। फिर उनका स्टूडेंट वीजा, एक स्टूडेंट है उनका यहाँ पढ़ रहा है, वो कैसे तालीम छोड़ के जाएगा? उनके लिए मैंने बात की, वो भी मैंने काफी हद तक मसला हल किया। लेकिन अगर ये पहले से प्लान बन के मुशावरत करके एक तरीकाकार से, जब आपने इतना जिंदगी को रखा है, वो आपके शुक्रगुजार हैं, अगर आप उनको वापस इस तरीके से भेजोगे तो नफरत ही पैदा करवा रहे हो ना। ये नफरतें पैदा हुई हैं तो आज ये हाल है, तो तुम मजीद नफरतें पैदा कर रहे हो। तो मेरी पॉलिसी बड़ी क्लियर है उसके ऊपर कि हम लोगों को इधर से भेजेंगे, इज्जतदार तरीके से भेजेंगे, अपनी रिवायात के मुताबिक भेजेंगे, जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं हम करेंगे, जो हमारे पास में है पैसे रसूंगा। दूसरी बात जो है, जो आप खान साहब की बात करें, देखें खान साहब की मेरे साथ मुलाकात इसलिए जरूरी है कि खान साहब को मैं वो चीज बता सकता हूँ जो कि बेसिकली फैक्ट के ऊपर होगी, क्योंकि मैं एक हुकूमत का हिस्सा हूँ, सिस्टम का हिस्सा हूँ, केपी का वज़ीर आला हूँ। तो मैं जो उनको बात बताऊंगा, मैं उनको फैक्ट की बात बताऊंगा। एक है मफरूज़े, मफरूजा ये है कि आज इसने विलाक कर दिया, एक मफरूजा बन गया, कल इसने कर दिया, परसों मैंने एक बयान दे दिया, परसों इसने दे दिया। ये है मफरूजे, कभी भी फैसले मफरूजों पे नहीं होते। खान साहब जेल में है, उसके लिए फैसला करना क्यों मुश्किल हुआ पड़ा है? ये भी एजेंडा है बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट का कि पॉलिटिकल लोगों को नहीं मिलने दे रहे। वो भाई पॉलिटिकल पार्टी का हेड है, पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी का वो सरबराह है, चेयरमैन है, और वो पॉलिटिकल लोगों से नहीं मिलेगा तो पॉलिटिकल फैसले कैसे होंगे? तो ये सारी प्लानिंग है इनकी, ये सारा इनका एजेंडा है। मैं ऐसे लोगों से एक बात करता हूं, बात यह है कि मेरे ना मिलने से नुकसान किसका हो रहा है? मेरा सबसे ज्यादा नुकसान मेरा हो रहा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तनकीद भी मेरे पे हो रही है, नुकसान भी मेरा हो रहा है, मेरी पार्टी का हो रहा है, मेरी हुकूमत का हो रहा है, मेरे सूबे का हो रहा है। गलत बयानियां बनता है, उसका नुकसान भी डायरेक्ट मैं उठा रहा हूं। ठीक है, एक तरफ सारा नुकसान मेरा हो रहा है, इधर हमारे कुछ डाउट्स कहते हैं अली अमीन मिला हुआ है। आओ जी, ये तो बड़ी अच्छी यारी है, मैं यारी में तबाह हो रहा हूँ और मैं यारी कर रहा हूँ क्यों? कि मैं इनका मुलाजिम हूँ या मैं इनके घर से खाता हूँ? भाई वो तबाही फेर के रखी हुई है उन्होंने मेरी। आपने मेरे से हर तरह का उनकी रीट को खत्म करने के लिए हर तरह का काम मैंने किया, हर तरह का। 4 दफा मैंने ब्रीच किया है, स्टेट के खिलाफ 4 दफा मैंने ब्रीच किया है, 4 दफा मैं कामयाब हुआ ब्रीच करने में। हाँ, मकसद हासिल हुआ नहीं हुआ अल्लाह के हाथ में है। मैंने ब्रीच किया है, मैंने ब्रीच किया है। लाहौर का जलसा हो रहा था, मैं पहुंचा हूं। अब बात सुनो ना भाई, लाहौर में जलसा हो रहा है, 6 घंटे लगते हैं पेशावर से अगर अपनी गाड़ी में जाऊं अकेला। जब लोगों को आपने बुलाना है, हजारों लोग लेके जाने हैं, फिर वेट करना है, फिर इकट्ठा चलना है, टाइम लगता है भाई, जुलूस में बहुत टाइम लगता है। 6 बजे मैं तैयार था, 8 बजे हम वहां से रवाना हुए इकट्ठे होकर। पूरे जलसे का टाइम था 5 से 6, ऐसा ही है पाकिस्तान से टाइम चल रहा है ना यहाँ पर। 5:15 बजे मैं शाहदरा के ऊपर, रास्ते खोलने के बाद, मोटरवे के रास्ते खोलने के बाद मैं शाहदरा लाहौर के ऊपर एग्जैक्ट 5:15 बजे लड़ाई कर रहा हूँ अंदर घुसने के लिए। मैं लाहौर में एंटर हो चुका हूँ। वहां जलसा वाले न मेरी मदद के लिए आ रहे हैं पीछे से, न मेरा वेट कर रहे हैं। मैं पूरे 15-20 मिनट बाद जब इन्होंने जलसा खत्म किया, मैं पहुंच गया उधर। मैं लाहौर, उसके बाद 3 और डके थे मुझे, मैं उन पे लड़ के पहुंच रहा हूँ अभी पूरी अवाम के साथ। जलसा खत्म करने वाले कौन थे? उनसे पूछो ना भाई, क्यों खत्म किया है? निकल के मेरे बयान बना दी, अली अमीन लेट क्यों आया है? वो अली अमीन के लिए मरियम नवाज ने रेड कार्पेट बिछाए हुए थे, जो फूलों पे चल के आता। रास्ते में कंटेनर, आंसू गैस, शेलिंग, मैं तोड़ तोड़ के पहुंच गया हूँ, बड़ी बात है। और तुम लोग जो उधर बैठे हुए थे, तुम लोगों से जलसे के ऊपर घंटे का टाइम के बाद तुम नस गए हो, फिर वहां से तो वेट कर लेते। जो वहां पे सरबराह खड़े थे स्टेज के ऊपर, क्यों भागे हो? अवाम तो खड़ी थी, तुम लोग जलसा खत्म करके लाइट ऑफ करके निकल गए तुम लोग वहां से। फिर मैं ये बात करूं, फिर कहते हैं कि पार्टी वायलेशन है। मैं तो पार्टी वायलेशन करता नहीं हूँ, मैं तो खड़े हो कहता हूँ जो इतना कर रहा है अल्लाह उसका भला करे, अपनी कैपेसिटी में हर कोई कर रहा है। ठीक है, अब आ गया, सुनते हैं 2-3 चीजें सुन लें। ये हो गया, मेरे पे सारी तनकीद आ गई। ब्रीच भी मैंने की, हमारी कामयाबी थी। जलसे की जा किसने दिलाई है लाहौर में? मैंने, मेरे प्रेशर में जलसा दिया है कि मैंने कहा भाई मैं फिर आके अटैक करूंगा। उन्होंने कहा तुम मत आओ, जलसा कर लो। फिर भी मुझे कहा गया कि नहीं तुम जाओगे तो लोग निकलेंगे। मुझे जाना पड़ गया, उन्होंने मुझे रोका। जलसे की परमिशन तो मैंने दिलाई थी इस बात पे कि वरना फिर मैं लाहौर में आके यहाँ से लोग लाऊंगा। उन्होंने कहा वहां से मत लाओ, परमिशन दे दी। ऐसा ही है, मुझे कहा गया, हुक्म दिया गया पार्टी की तरफ से कि नहीं तुमने भी आना है लोग लेकर। हालांकि जरूरत तो थी नहीं, मुझे अकेला बुला लेते,
मैं एक दिन पहले चला था वज़ीर आला बन के, वहां पे रह लेता। लेकिन कितनी आबादी है लाहौर की, जैसे ही जब इजाजत मिल गई तो पेशावर से या सूबे से लेने बदले लाने की जरूरत होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पंजाब से लाहौर ही काफी था। जब ये कहा तो उन्होंने तो कहा कि ठीक है, ये फिर वो जत्था लेके, जिसको हमारी आवाम को कहते हैं जत्था, वो जत्था लेके आ रहा है। उन्होंने रुकावटें डाल दी मुझे। उसके ऊपर सारी तरकीब बजाय विक्ट्री के कि हम सेलिब्रेट करते हैं अपनी जीत, हमेशा से खान साहब भी कह रहे थे कि हमने कभी अपनी जीत सेलिब्रेट नहीं की। ये उसका सबूत है। उसके बाद हो गया कि जी पिंडी, हम लोग निकले सुबह, लड़ते झगड़ते 12:30 बजे हम बॉर्डर में पहुंचे। मोबाइल तो मैं रखता नहीं हूँ, मेरे पास मोबाइल है तो मेरे पास नहीं थी। 12:30 बजे पिंडी की बॉर्डर तक हम पहुंच गए, सारे रास्ते रुकावटें तोड़ कर। वहां से मैसेज आया कि यहाँ पे पिंडी का प्रोग्राम खत्म हो गया है। ऐसा ही है ना, मैंने तो ऐलान नहीं किया था। वापस चलो, वापस जाके मेरे पे लान तान, वो फैसला मेरा था, मैंने तो नहीं किया। ठीक है, उन्होंने कहा खत्म है, हम वापस गए। वो भी हमने विक्ट्री की थी, मारते मारते पिंडी तक पहुंच आए थे, वो भी उल्टा हमारे पे सुबह पे तरकीब शुरू हो गई कि देखो जी नहीं पहुंच सके। वो कैसे पहुंच के आऊं, रास्ते खोलने पड़ते हैं। और ये ऐसे आम डक्के नहीं होते, हमारे पूरा किलोमीटर के ट्रेलर खड़े होते हैं, खड्डे मारे होते हैं, 56,000 गैस मारते हैं, ये बुलेट्स मारते हैं, ये प्लास्टिक बुलेट्स मारते हैं, ये रबर बुलेट्स। उसके बाद क्या हुआ, तीसरी दफा मुझे खान साहब ने कहा था एक एजेंडे पे कि तुम्हें जाना है और तुमने ये काम कराना है 4 अक्टूबर। मुझे खान साहब ने कहा था ना, मुझे कहा था। हम लोग 4 को निकले, मुझे पता था कि मेरा मकसद क्या है आने का, क्योंकि खान साहब ने मुझे कहा था। मैं तो 4 को निकल आया। मुझे ये बताओ कि 4 तारीख को सबने आना था ना। यहाँ पे अलीमा बाजी जब गिरफ्तार किया, कितने लोग थे यहाँ पर? एक बंदा नहीं था। वीडियो है आपके पास। मैं 4 को निकला, 5 को पहुंचा। मैं 5 को पहुंचा तो जो मकसद कहा गया था ना मुझे, वो मैंने अचीव कर लिया वहां पर। और वो काम नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ वो काम कि काजी फारिसा जो है वो नहीं लगेगा। ये काजी फारिसा को उस वक्त लगा रहे थे, हो गया नहीं लगा ना, काम हो गया, जीत थी। उल्टा मतलब मैं इमरान रियाज की मान लूं कि तू खोते बैठ के अफगानिस्तान गया है, तू मेरी नहीं मान रहा कि मैं हरिपुर से होता हूँ अपने जिलों से पेशावर आया हूँ। तेरा खोता मैं मान लूं कि तू खोते पे आया, तू मेरा गवाहों के साथ नहीं मान रहा कि मेरे पास गवाह मौजूद है कि मैं वहां से आया हूँ। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद आ जाए 26 नवंबर, 24 को हम निकले। 3 दिन तक लड़ाई करना मजाक नहीं है। और तरीके इंसाफ है, पहली दफा पूरा वक्त नहीं आया, अच्छा वक्त नहीं आया। इस तरीके इंसाफ में पूरा वक्त पहले भी आए, अच्छे वक्त पहले भी आए। किसने क्या किया है वो भी सबको पता है, किसने कौन से तीर मारे वो भी सबको पता है। 3 दिन हम लड़े हैं जाग के, खाना नहीं है, पानी नहीं है, लड़ाई शुरू है। हम जब स्वाबी क्रॉस करते हैं ना भाई, मेरे लिए फिर वही हो जाता है तो तुम्हारे लिए पंजाब है। मैं स्वाबी के उस तरफ के पी हूँ, स्वाबी के बाद मेरे साथ यही रवैया जो शुरू है यहाँ पर। 3 दिन वहां पे इन्होंने गोलियां मार दी, तो इन्होंने गोलियां मार दी। अब लोग गोलियों के सामने, लोग तो गोलियों में तैयार ही नहीं थे। उसके बाद बजाय कि हम सेलिब्रेट करते ये चीज कि हमारी विक्ट्री हुई है, कि पूरी हमने रियासत को शिकस्त दी है, और फिर वो गोलियां मारी पड़े, हमारे बंदे शहीद करने पड़े हैं, उल्टा हमारे पे इल्जाम। तो ये कौन लगा रहा है, ये कौन कर रहा है? जिनके कमर्शियल इंटरेस्ट ठीक है। अब खान साहब को जो बात पहुंची है, इनको ये बताएं, जब आप सदारत से हटे तो उसके बाद हमें बताएं कि उसके बाद किसने जवाबी से आगे कोई आया है, ये बताएं सर आप इनको। ये बड़ा सख्त सवाल है, ये भी पार्टी पे आता है। वो कह रहा है कि एक सवाल ये भी कर लो कि मैं सदर था, मैंने इतनी ब्रीचें की। अच्छा, इसमें देखो पिंडी वाले उस लड़ाई से एक फायदा हुआ, वो ये हुआ कि मैंने कहा जब दोबारा आऊंगा तो जलसा दो। उन्होंने जलसा दिया, 6 घंटे जलसा लंबा हुआ। इधर 15 मिनट तो खड़े नहीं हो सकते। मैंने पिंडी में 6 घंटे जलसे को लंबा किया। आखिर तक मैं खड़ा रहा, बंदों को ला के मैंने जलसे को 6 घंटे चलाया। अब बात ये जो आप बात कर रहे हैं ना सर, अंदर जो बयानिया जाता है, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करता। मैं किसी की नीयत से, ये कह रहे हैं ना भाई, कह रहे हैं हमारे मिनिस्टर साहब कि जब से मैं सदारत से हटा हूं तो कोई बताए क्या किया है। नहीं, जवाबी से कोई इस तरफ आया, कोई नहीं आया, क्या किया किसी ने। मैं ये सवाल नहीं करता, क्योंकि मैं पार्टी के अंदर मैं दरार नहीं पहनता, मैं तस्लीम नहीं करता। मैं अपना कहूंगा कि मैंने क्या किया, मैं क्या कर सकता हूँ। किसी ने नहीं किया, मेरे किसी की नीयत पे शक नहीं है, नहीं कर सकता, वो कैपेसिटी नहीं होगी, छोड़ो इस बात को। मैं ये कह रहा हूँ कि खान साहब को जाकर वहां पे कोई ब्रीफ करता है, वो अप टू द मार्क नहीं होता। हर एक के वेस्टेड इंटरेस्ट है, हर एक के एजेंडे हैं। किसी को मैं भेजता हूँ कि तुम ये बोलो, किसी को आप भेजते हो मुझे, मैं जाता हूँ मुझे कहते हो तुम ये बोलो। उसके अंदर खान साहब का फैसला करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। ठीक है,
उसके बाद पार्टी के अंदर आपको पता है एक तनाव चल रहा है, ग्रुपबंदियां बनी हुई हैं। ग्रुपबंदियां किसने बनाई है? तो भाई मैंने तो आज तक नहीं बनाई है, आज तक मैंने ग्रुपबंदी नहीं बनाई। और मैं पीटीआई में आपसे नहीं हूँ, मैं पीटीआई में 2007 से हूँ। अब मेरा रिकॉर्ड चेक कर लें, मैंने आज तक ग्रुपबंदी नहीं की पार्टी के अंदर। खट्टर के खिलाफ भी साजिशें हुई हैं, महमूद खान के खिलाफ भी हुई है, पार्टी ओहदों के लिए भी हुई है। आज तक एक बंदा पार्टी का कह दे कि मैंने कभी भी कोई लॉबिंग की हो, मैंने कभी भी कोई साजिश की हो, मैंने कभी लेग पुलिंग की, मैंने नहीं की। ये हम सब खान साहब के सामने ठीक है, बताएंगे कि कौन। अच्छा, अब बात ये है, अर्ज ये है कि इसके अंदर ये जो सारी चीज हो रही है, ये समझने की कोशिश ये करनी है सबने कि ये एस्टेब्लिशमेंट का हमारे दुश्मनों का एजेंडा है। इसका हिस्सा ना बनो, आप इसका हिस्सा नहीं, आप इसको लीड कर रहे हो। हिस्सा तो थोड़ी बात है, आप लीड कर रहे हो उनके एजेंडे को, और वो हमें कमजोर कर रहे हैं। और हमेशा कभी भी किसी तरह की जीत कमजोरी से नहीं हो सकती, चाहे वो मुज़ाकरात हो और चाहे वो जंग लड़के जीतनी हो। हमेशा जीता कौन है? जो मजबूत होता है। मुज़ाकरात भी तब होते हैं आपकी मर्जी के मुताबिक जब आप मजबूत होते हैं, और टेबल के साथ कोई बैठता नहीं है आपके साथ, बैठता है वो कहता है मेरी वाली बातों पे आओ, मेरे मुताबिक तुम करोगे। अगर आपने अपने मुताबिक करने हैं ना मुज़ाकरात, मुल्क के लिए, कौम के लिए, अपनी पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, तो उसके लिए मजबूत होना जरूरी है। कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। और मैं सबको फिर आखिर में यही कहूंगा, मैं ये ना कहूं कि आप क्या कर रहे हो, मैं ये कहूं कि मैंने क्या किया। जब सब इस बात पे आ जाएंगे ना कि मैंने कितना किरदार अदा किया, तो फिर उसके बाद हम मजबूत होंगे। गंडापुर साहब, आज आप अब हमारा जलसा 27 को जलसा हो रहा है, ठीक है, अब कोई रुकावट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। आओ पिशावर, आओ पिशावर ना, निकल आओ 1 करोड़ बंदा, आओ, मैं तुम्हें होस्ट कर रहा हूँ, आओ। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अली अमीन पे तोहमते भी लगाओ, अली अमीन को डिस्क्रेडिट भी करो, अली अमीन को गद्दा भी करो, फिर अंदर से पैगाम दो कि अली अमीन तुम दावा बोलो, अली अमीन तुम जलसा करो, अली अमीन तुम जो है ना मार्च करो, अली अमीन तुम फिलाना इवेंट करो, तुम 5 अगस्त में सुबह के लोगों को निकालो, तुम 14 अगस्त में जलसा करो। मैंने तो किया डी खान में जलसा, देखिए आपने वीडियो, डी खान में पूरा स्टेडियम फुल है। कितने लोग निकले हैं 14 अगस्त पे? 5 अगस्त को कितने लोग निकले हैं? पिछले 8 महीने में कौन निकला है? 5 अगस्त वाले दिन मैं लिख के देता हूँ कि पूरे सूबे में 7.5-8 लाख लोग निकले हैं। तारीख में इतने लोग नहीं निकले, हर जगह से, ये सब तमाम हल्कों वाले बैठे हुए हैं, हल्कों में, हर हल्के में हजारों लोग निकले हैं। बात यह है, उसके बाद ये भी करो, फिर उसके बाद आप ये भी कहो कि एक्सपेक्ट कराओ कि जी एक बहुत बड़ा इवेंट भी करो। ऐसे नहीं होता। इवेंट में हर बंदा अपना हिस्सा डालेगा, हर बंदा आएगा, हर बंदा पूरा जोर लगाएगा। इस तरह बैठ के टिंग टिंग टिंग, मैं कहता हूँ टिंग टिंग टिंग, ये टिंग टिंग टिंगों से अगर इनकलाब आते ना, विलागों से इनकलाब आते ना, तो खान साहब जेल में ना होता मेरे भाई। फिर मैं जब कहता हूँ कि भाई मैं दोबारा अगर आऊंगा, क्योंकि मैंने वहां पे देखा कि जब गोलियां चली तो लोग चले गए बेचारे, मैंने खुद अपने हाथ से लोगों को मैंने उठा के गाड़ियों में डाला है। तो मैं समझ गया हूँ कि अब मैं खुदकुशी नहीं कर सकता। ये बार मुझे कहते हैं ये बात मत करो, ये बात मत करो, मैं क्यों ना करूं? मैं फिर करता हूँ, बार बार करता हूँ कि मैं खुदकुशी इस्लाम में हराम है, मैं लड़ के मरूंगा, खुदकुशी नहीं करूंगा कि मैं निहत्ता हूं तो आओ सीने पेश करूं, अपने लोगों को मरवाऊं मैं, क्या वो मुझे मारो? क्यों? मुझे जो मारेगा फिर मुझे आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है कि मैं अपना तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, फिर जो मारेगा फिर मैं उसको मारूंगा। मैं ये बात करता हूँ, मेरी बात इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। मेरी इस बात को कोई सपोर्ट क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरे खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए। मैं तो कर रहा हूं ना यार, मैं नहीं डर रहा कि मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाए। और मैं कह रहा हूं क्योंकि अब अगर आप चाहते हैं कि आप वाकई इनकलाब उस तरीके से लाना चाहते हैं, तो मैं भाई साफ कह रहा हूं, मैं किसी के बच्चे मरवाने पे सियासत नहीं करता। मैं लड़ूंगा, मैं लड़ के मरूंगा। मैं खुदकुशी ना खुद करूंगा ना खुदकुशी कराऊंगा अपने लोगों से। किसी को बुरा लगता है, अच्छा लगता है। गंडापुर साहब ये बताइएगा, आपने बात की व्लॉगर्स की कि व्लॉग के जरिए बयानियां बनाया जाता है, सोशल मीडिया के जरिए बयानियां बनाया जाता है और आपको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या ये इस बात का एतराफ है कि जो व्लॉगर्स हैं या जो सोशल मीडिया है वो भाई रास्ते में यहाँ पे मैं डेली आता हूँ। कब से आ रहे हो? मैं डेली आता हूँ। अच्छा, मैं बताता हूँ तुम्हें। मैं 3 दफा पहले आ चुका हूँ, यहाँ पर भी और वहां पर भी, ठीक है। पूरा दिन बैठा रहा हूँ, आप शायद नहीं थे उस दिन, ठीक है। पहले भी आ चुका हूँ। उसके बाद दरमियान में मैं वैसे भी जब खान को जब भी मिला हूँ ना, खान साहब को, तो वो 2-3 महीने का गैप हमेशा आया है। जब से मैं वज़ीर-ए-आला बना हूँ ना, 2 महीने 1.5 महीने बाद भी मिला हूँ तो मिला हूँ, 2-2.5 महीने बाद ही मिला हूँ। उससे पहले मुझे नहीं मिले देते, हमेशा ही मसला होता है। उसके बाद मैं आया, नहीं छोड़ रहे, क्या करूँ। फिर उसके बाद सैलाब आ गया। अब सैलाब के अंदर अगर मेरे मीटिंग है खान साहब से फिर तो ठीक है, लेकिन अगर सैलाब के अंदर मेरे सूबे के लोगों को मेरी जरूरत है,
और मेरी मीटिंग भी नहीं है और मैं यहाँ बैठा हूँ, तो ये ज्यादती है। या तो मेरी मीटिंग हो ना, फिर तो ठीक है। वो लोग कहेंगे यार मीटिंग में नहीं है, वहां बैठा हुआ है, इधर हमारे लोग मिल नहीं रहे, हमें मैयत नहीं मिल रही अपनी। तो बात ये, मैं आया हूँ, ये 1.5 महीना मैं नहीं आया, पिछला सैलाब की वजह से नहीं आया, और मेरी जो कि डेट ही नहीं दे रहे मिलने की, तो नहीं आ सका। इससे पहले मैं 3 दफा आया हूँ, रिकॉर्ड पे है, ये आप ना कहो कि मैं नहीं आया। हाँ, मेरे पे एक जिम्मेदारी भी है सूबे की। अगर आप ये चाहते हो कि मैं, अगर खान साहब को सही रिपोर्ट जाए ना और सही बात जाए, ठीक है, तो खान साहब से मेरी मुलाकात अगर ना भी हो तो मुझे पैगाम आ जाता है। मसला गलत चीज का है, सही चीज जाती नहीं है, अंदर क्या बात होती है, उधर से अंदर क्या बात होती है, किसको मैं अच्छा लगता हूँ, किसको मैं बुरा लगता हूँ, वो क्या कहानी झाड़ता है, बाहर आके खान क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, मुझे क्या पता। लेकिन उससे नुकसान पार्टी का हो रहा है। और आप क्या समझते हो कि खान को मिलने के लिए सबसे ज्यादा बेताब कौन होता होगा? सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? मुझे हो रहा है। तो क्या मैं नहीं मिलना चाहूंगा? ये कह रहे हूँ, जानबूझ के नहीं मिलता। लानत है तुम्हारे वजूद पे। गंडापुर साहब, तुम पैदा हुए हो, तुम्हारी पैदाइश पे लानत है। गंडापुर साहब, आज आपने पैदाइश पे लानत है। गंडापुर साहब, तो ये कह रहे हैं कि ये मिलता नहीं। गंडापुर साहब, आपने आज मुकम्मल तौर पर इधर ही बैठे हैं, इधर ही बैठे हैं। गंडापुर साहब, आज आपने आपको वेलकम किया, पहली दफा इस तरह से आपके ऊपर गुलपाशी की गई, वो मंजर सबको याद है। तो इस बात, ये तो सबको पता है कि आप गंडापुर साहब सोशल मीडिया आप समझते हैं कि खान साहब ने भरपूर जिम्मेदारी आपको दी, तो आपको देखिए जी, बात यह है, अफगानिस्तान एक इस वक्त एक इमारात इस्लामी की हुकूमत बन चुकी है। वो पूरी दुनिया से वो मिल भी सकते हैं, वो मेरे अंडर तो आते नहीं है कि मुझसे इजाजत लेंगे ना। उनकी अपनी एक डिप्लोमेसी है, वो कर रहे हैं, उनके मुआहदे हुए हैं, चाइना के साथ भी अभी हुए हैं, अफ्रीका के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है। वो उनका अपना एक पर्सनल मसला है, वो एक खुद मुख्तार अपना एक मुल्क है। एक सूबे का उसे क्या काम है इस चीज में कि वो अगर मिल रहे हैं उसे या नहीं मिल रहे। उनके कई एजेंडे हैं उनके साथ, उन्हें कोई मुआहदे हुए थे, जो वापस जाएंगे, असला देंगे, उनको नहीं देंगे, वो असला मांग रहे हो नहीं मांग रहे हो, वो उनका अपना पर्सनल मसला है। सोशल मीडिया की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए सोशल मीडिया एक बहुत ही ताकतवर वेपन है हमारी पार्टी का, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमेशा जो आपका वेपन है ना, वो आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है, आपके हक में भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। अब हो ये रहा है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने भी और नून लीग ने भी एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया नेटवर्क बनाया हुआ है। इसके अलावा आपको क्या पता कौन सा किसके एजेंडे पे है, किसी के बच्चे पे लिखा हुआ है। ये जो कुछ लोग बैठे हैं और झूठ पे झूठ बोलते हैं और उनके बयानियों को अगले टैग कर लेते हैं, तो भाई आपकी हुकूमत गिरा देते हैं, ठीक है। अब बात यह है, दूसरी बात है, सोशल मीडिया का एक लिमिटेड किरदार है। एक बात याद रखो, मैं आपको बड़ा क्लियर से बता रहा हूँ एक बात, सोशल मीडिया ने हमें इलेक्शन में बहुत सपोर्ट किया, बिल्कुल, लेकिन मुझे वोट लोगों ने सोशल मीडिया पे नहीं दिया, पोलिंग बूथ पे जाके दिया है। अगर ये पोलिंग बूथ पे जाने वाले ये मर्द और खवातीन, ये जरूरतमंद लोग ना होते, तो फेसबुक पे मुझे वोट देने से इमरान खान को ये वोट जो चोरी हो गया ज्यादा, सारा उधर पंजाब में और केपी में भी चोरी हुआ, पूरे पाकिस्तान में चोरी हुआ, तो ये तो सारा चोरी था। फिर जब तक वो नहीं गए और फिर जिन लोगों ने स्टैंड लिया, खड़े हुए, आरओ के दफ्तर के मुहासरे किए, उन्होंने रिजल्ट भी ले लिया अपना। जो नहीं खड़े हुए उनका रिजल्ट चेंज भी हो गया। तो सोशल मीडिया का एक किरदार जरूर है, लेकिन ये सारा क्रेडिट नहीं जाता कि मैं कहूं कि जी मैंने ही सारा कुछ किया, ऐसा नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, मिसगाइड जब करे एक चीज, आपको मिसलीड करे, तो उस पर इंसान को अल्लाह ने अकल क्यों दी है कि मुआवजा करो, एक बंदे की क्रेडिबिलिटी का मुआवजा करो, एक बंदा जो बात करे उसका मुआवजा करो, मुआवजे के बाद किसी के बारे में राय कायम करो। तो मत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। हम यहाँ बैठ के न कोई रिसर्च करते हैं, न कोई कंपैरिजन करते हैं, न कोई फैक्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर ठोक देते हैं, तो मत लगा देते हैं। तो ये हमारा इखलाकी इक़दार की निहायत ही कमजोरी बनती जा रही है। आपने जो बात की है, जहां तक बात है आपके कितने जोर हम लगा सकते हैं खान के लिए, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त हमारी कोई जंग आम जंग नहीं है, हमारी जंग है रियासत पाकिस्तान के साथ। रियासत के तमाम इदारे हमारे खिलाफ नहीं है, हमारे साथ दुश्मनी कर रहे हैं, ज़ातियात कर रहे हैं, जुल्म और फसाइयत की इंतहा की है उन्होंने। उनसे लड़ने के लिए आपको मुत्तहिद होना है, पहले मुत्तहिद होना है। वो आपको तस्लीम कर रहे हैं, आप उनके एजेंडे पे काम करें, आप मुत्तहिद हो जाएं, आप मुत्तहिद हो जाएं, एक हो जाएं, अपना प्रेशर बिल्डअप करें, बजाय मैं आप पे बात करूं, आप मेरे पे बात करें, आप फोकस करें। जब खान साहब ने ऐलान किया कि फाइनल मार्च है, केपी में फाइनल मार्च होनी थी, क्यों नहीं आए लोग? क्यों नहीं आए लोग? केपी वाले तो आए हैं,
ٹھیک ہے 1.5 لاکھ آیا, 2.25 لاکھ آیا, 50 لاکھ کیوں نہیں آیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے, 50 لاکھ کیوں نہیں آیا؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں بھائی کہ آپ جب متحد ہوگے, آپ جب مضبوط ہوگے تو اپنا مقصد حاصل کرو گے. آپ کوئی یہ کوئی بٹیرے والی لڑائی نہیں ہے کہ میرا بٹیرا میں نے چھوڑا, تمہارا بٹیرا تم نے چھوڑا. تمہارا نس گیا تو میں دوسرا لے آؤں گا, پھر میں اپنا دوسرا چھوڑ دوں گا. میرا نس گیا تو پھر تو مجھے کہے گا اپنا نیا بٹیرا لے کے آ. یہ ریاست پاکستان کے اس قبضے کی جو اس اداروں نے اس ملک پہ کیا ہوا ہے, اس سے چھٹکارے کی جنگ ہے, حقیقی آزادی کی جنگ ہے. کوئی مذاق تو نہیں چل رہا. اور ہم اس کو کیسے لے رہے ہیں؟ ہم اس کو لے رہے ہیں کہ شاید میں ولاگوں سے یا میں جیلی اکاؤنٹیں بنا کر کمنٹوں سے میں یہ کر لوں گا, ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے, عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ پہ ہے. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسی حرکتیں کرے کسی کی عزت خراب کر سکتا ہے, یہ اپنی خام خیالی میں ہے. اللہ الحق ہے, اپنے وقت پہ وہ فیصلہ کرتا ہے. اپنے وقت کے اوپر وہ انسان کو اس کی کوشش کا اجر بھی دیتا ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے, اجر اللہ نے دے رہا ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پہلے دن سے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آج سے, پہلے دن سے جو ڈرامہ شروع ہے, یہ ڈرامہ بند ہو جائے. عمران خان یوں رہا ہے, یوں انہیں ڈراموں کی وجہ سے عمران خان رہا نہیں ہو رہا. یہی لوگ ہیں ڈرامے کر رہے ہیں, یہی ڈرامے ہیں. اختیار ہے نہیں. ہر بندہ منہ گھوڑا بنا ہوا ہے. منہ گھوڑے جو ہے نا بھائی, وہ کس سمتی دوڑ پڑتے ہیں. وہ جو تھا نا کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. انہوں نے گھوڑے ایسے دوڑائے تھے, ایسے نہیں دوڑائے تھے. ہمارے تو ایسے والے بھی کچھ گھوم رہے ہیں, ایک بلاول گھوم رہے ہیں, کچھ ہمارے نہیں گھوم رہے ہیں. گھر میں بیٹھے ہوئے اور ایسے کر رہے ہیں. اور ایسوں پہ انقلاب نہیں آتے. انقلاب آتے ہیں جذبے سے, جنگ سے, لڑائی سے, کنفرنٹیشن سے. ہم نے ثابت کیا پختونخوا کے لوگوں نے الحمدللہ کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ ہر حد تک گئے ہیں. ہر حد تک ہم نے جانے بھی دی ہیں, ہم زخمی بھی ہوئے ہیں, ہم لڑے بھی ہیں. 3 دن یار, 3 دن فوج نہیں لڑ سکتی ہے کسی ملک کی. ہم نے اپنے لوگوں نے اپنی فوج اور اپنی پولیس کے خلاف 3 دن سروائیو کیا ہے. آخر میں گولیاں ٹھوکی ہیں, ورنہ خدا کی قسم یہ گولیاں نہ مارتے, ہم بتاتے کرتے کیا ہے ان کے ساتھ. گولیوں کی طاقت سے کی ہے. اچھا پھر گولیوں کی طاقت پہ اگر میں آ جاؤں, پھر میں دوبارہ وہ بات کرتا ہوں, پھر یہاں پہ سب کی ہوا نکل جاتی ہے, سب کی, میڈیا کی بھی ہوا نکل جاتی ہے. میری پارٹی والے کہتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں, علی امین جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے لگا ہے. یہ بات اس لیے کر رہا ہے کہ ان سے ملا ہوا ہے, اور میں ان کو ڈرا رہا ہوں, میں ان کو دھمکا رہا ہوں, میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں. ان کی مطلب ہے کہ یوں ہی ہو جاتی ہے سن کر کے بس اسلحے اٹھا گئے تو ہمارا کیا حال کریں گے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے. فائدہ تمہاری بزدلی کا ہو رہا ہے, فائدہ تمہاری بغیرتی کا ہو رہا ہے. آؤ اٹھا لو قسم اس بات کے اوپر, اٹھا لو قسم کہ پھر ہم نکلیں گے اس دفعہ. اگر ہمیں حق نہیں ملتا پھر ہم مریں گے. لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں, میں خودکشی, میرے مذہب نے کہا ہے خودکشی حرام ہے. میں لڑوں گا, میں لڑ کے مروں گا, میں خودکشی نہیں کروں گا. جو یہ جرأت رکھتا ہے آؤ یہ بیانہ شروع کر دو. یعنی دفعہ نکلیں گے, اسلحے سے کوئی مارے گا تو ہم بھی ماریں گے. اسلحہ ہمارے پاس بہت ہے, اللہ خیر کرے گا.